This is a parable of 6 blind men and the elephant. In a few minutes, I am going to show you how this story can teach you how you can achieve freedom from hormonal imbalance, which can cause you upside down in both males and female, PCOD, menstrual irregularity, painful menses, hot flushes, menopausal syndrome. Not only just that, pimples, acne, hair loss, dry skin, they are nothing but hormonal imbalance. Anxiety, depression, even mood swings are due to hormonal imbalance. Even today, in this fast-paced world, lifestyle disorders such as diabetes mellitus, hypothyroidism, obesity are due to the hormonal imbalance. Sexual problems such as low sex drive, impotence, even failure to conceive or infertility is nothing but hormonal imbalance. You are not alone, my friends. Millions of people are battling relentlessly effects of hormonal imbalances. Finally, no need to reach out to so-called experts, dietitians and health gurus. Enough of these false promises, temporary fixes and wasting of money and time. We are introducing Health Genie Genetic Specific Program, which is a revolutionary approach to hormonal imbalance that has already transformed the lives of thousands of individuals like you. Hey, I'm Dr. Yogesh, founder of Miracles Health Clinic, and I designed a guaranteed and sustainable program for reversing of hormonal imbalances and lifestyle disorder. And that just in 43 days. Without any fancy diet plan, heavy workout, or costly gym or following strict routines. Oh, but wait. This program is for those people. Number 1, if you are damn serious about your health. Number 2, if you are super busy due to job, business or professional activities. Number 3, suffering from any lifestyle disorder. Number 4, you are on any conventional medication. Number 5, you have tried many treatments, tricks and gone to so-called expert health gurus and non-medical advisors. This program is not for those people. Number 1, if you are a student or in learning courses. Number 2, health is not on your priority list and you are super busy with other activities. Number 3, if you are pregnant and your baby is less than 6 months old. Number 4, those who undergone any major surgeries in less than 1 year and those on life-saving drug. Number 5, you are non-teachable. Friends, my goal is to give you permanent results with my unique genetic specific program, which is useful for hormonal imbalance, obesity or weight loss journey, reverse of lifestyle disorders such as diabetes, blood pressure, thyroid imbalance, sexual disorders, sleep disorders, to give you freedom from those toxic medication and freedom from illness. So once again, thank you very much for signing for this free video training. I have spent more than 10 years to develop the genetic specific program, so please watch this entire video till the end. It is harsh reality that most of the people land up losing their precious health in the pursuit of accumulated wealth. We neglect our health as we think it is free and land up with lifestyle disorder like increased cholesterol, diabetes, obesity, hormonal imbalances, digestive issues, sleep problem and many more. I can relate this problem very well as important lady in my life. My wife was also trapped in the situation. She was suffering a lot. Small flashback about her health issues. Friends, these are the pictures of my beautiful wife, Dr. Bhagyashree. She was suffering from PCOD, menstrual irregularities, mood swings, hair fall, and everything was upside down, including our marital relationship. This was very difficult time and phase as we were in the bad phase of our marriage. Although we both were doctors, we were not aware how to tackle these health issues. We definitely took help from modern medicine as usual, but problem got worse. She was unable to continue medication as she started putting on weight and she became more depressed. Then we tried herbal therapies, yoga, even tried pranayam, even followed many dietitians, PCOD experts and so-called online health coach and gurus, but nobody knew where the problem lies. Everything was temporary fixed, surface level solutions. I was totally in the phase of frustration and anger with myself and with my condition. I told my wife to give me 6 months time. Till that, don't take anything else. Don't try or experiment with yourself. Now enough is enough. And then after, I read more than 1,000 books on holistic health and complementary medications. I found out that my wife is suffering from hormonal imbalance.
And this connection is very realistic, friends. Let me tell you how everything comes back to hormonal imbalances. Although in India, endocrinologists are there to deal with hormonal imbalance, but we were skeptical to try one more specialist. Not only hormonal imbalance, I found out root cause of many lifestyle disorders of modern world in that research. It was literally eureka moment for me. I started deep diving into this design and one formula for my wife as I cannot wait to see her suffering. And friends, let me tell you, within 21 days, she felt something new happening with herself. She regained her confidence, slept well, and felt refreshing. We were super excited. She completed the entire course as I told her. She lost 10 kg weight within 43 days. Her period came on time, and that's without any pain or discomfort. And within 3 months, she completely changed herself. Now at present, she is 68 kgs weighing, more confident, energetic, no more hormonal disturbances. We are proud parents of super twins. I started using this magical formula which fulfilled our all wishes on our client, and we named it a Health Genie genetic specific method. You will never have to depend upon any pills, medications. You never have to go to the gym or consult a dietitian henceforth. Simple, 100% tailored made solution, helpful for male as well as females to combat weight gain or obesity, PCOD, fibroids, infertility, lifestyle disorders such as diabetes, hypertension, thyroid imbalance, sleep problem. This program helps you to reverse your illness, stop depending on toxic medication, and you will get freedom from everything. Meet my client, Priyanshi Madan, software engineer from Delhi. She was struggling with obesity, hypothyroidism, PCOD, and anxiety problems. After going through Health Genie program, she transformed herself. People wanted to know her secret as she is still managing idle weight without going to any gym or following in strict diet. She lost almost 31 kgs in 10 months. Her size changed from XXL to large. She has controlled her binge eating disorder. She started mindfulness activities. Her skin is glowing. She became more confident and energetic. Not only her PCOD gone, she cured herself from hormonal imbalance and other health issues. This Health Genie genetic specific method has cured her from root causes permanently. Now remember our story. This is a story of our modern healthcare, which is actually should be called as sick care, as nobody gives preventive treatment to avoid illness. Everybody has their own opinions, conclusions. Just as blind men touch different parts of the elephant and from their own interpretations, modern day healthcare sees everything in more fragmented ways. For example, when you are anxious, you'll get palpitations. But if you go to cardiologist, he will say you have a heart problem. If you go to a psychiatrist, he will say as it is a mental problem. If you go to your friends, they will say have 2 pegs and chill. So everyone is interpreting same problem differently. Didn't get much? Let's give you another example. If you get swelling on body, if you go to kidney specialist, he will say it's a kidney problem. If you go to gastroenterologist, he will say your liver is at fault. If you go to general physician, he will say you are anemic or you may have thyroid disturbances. If you go to any Ayurvedic doctor, he will say it is Vat. Just see, one problem, many suggestions. But if you go to any sensible doctor, he will tell you to observe water intake for 2 to 3 days, take enough rest, and your patient is female, then he will say, let menses come over, everything will be fine. This is sensible answer and true also. But unfortunately, everybody sees from their own angle, nobody want to see from a patient's angle. This is the biggest problem of the modern day healthcare. So friends, now the question comes, what is Health Genie? A genetic specific program? Just think about it. In case we lose our health, what all are we willing to do to regain it? Well, as we know, on one hand, the technological advancement and medical treatments are developing at a rapid pace. But on the other hand, life-threatening and chronic lifestyle diseases are also drastically increasing. Prolonged or inconclusive diagnosis, needless surgeries, and extremely expensive medical treatments and procedures are robbing millions of families in India from experiencing good health and happiness
destabilizing not just their physical but also emotional, financial, and social well being. What's really wrong? Where are we heading? How long can we wait for the diseases to attack us? And once they do, we run from pillar to post, looking out for an ideal treatment that can give us instant solution. Friends, I want to share with you something that can drastically alter this outdated method of managing our precious health. What if I tell you that there is a scientific way that can accurately predict the predisposition to various health risks you may possibly have much before they actually attack you? And what if I tell you there is a method to find out the exact root cause of your diseases if you are already suffering? Well, the answer lies in your DNA, your genes. Welcome to the amazing world of genetics. On the day when you were conceived in your mother's womb, the first cell, called the zygote, formed from the sperm from your father and the egg from your mother, carried 23 pairs of chromosomes. These chromosomes carry the genes or the DNA from your parents and their previous generations, which work as an instruction manual for effective replication, encoding information, cellular mutation, and gene expression. They determine who exactly you are going to be in your life, with diverse physical, emotional, and behavioral traits, including your gender. Unfortunately, your DNA also carries the risk factors for various health conditions and how they are going to react with various environmental factors causing lifestyle-related health conditions. That brings scientific breakthroughs from the world of genetic research into the real world, where we make it easy for you to not only understand your genetic risk, but also provide you solutions through nutrigenomics. Nutrigenomics is the study of effect of food and an emerging field with a lot of promise on how we might treat and prevent disease simply through nutrition. A growing scientific field, nutrigenomics is poised to become a game changer in the field of modern health management. Lifetime Genetics Program. Comprehensive nutrigenomics-based wellness program for the first time in India that provides DNA-based personalized approach to treat diet-related diseases. We can accurately predict a wide range of health risks you may possess and provide solutions even before the onset of many diseases. Lifetime Genetics Program includes a saliva-based DNA sample collection kit imported from Canada, free dispatch of DNA kits anywhere in India, your customized action plan that includes your gene-based diet plan along with gene banking facility. All these services come to you at an unimaginable price, making it the most cost-effective genetic diagnosis you can ever have anywhere in the world. So friends, do you want to know more about your DNA? Do you want to discover the power of your genes? Do you truly want to live a healthy, happy and long life? Till then, take care of your health and have a good time. So friends, I'm Dr. Yogesh. I'm certified health coach. I took coaching from Dr. Daryl Price and Dr. Megan Stone, and they are internationally acclaimed functional medicine coach. I have successfully completed my hormonal correction expert examination from International Hormone Society. I'm genetic based medicine expert from GTGA, Australia. I'm Dr. Jigar Shah, orthopedic surgeon from Mumbai. Due to my super busy practice and my tendency to put on weight easily, I was 10 kg overweight. My cholesterol level were increased and I found fatty changes in my liver. I tried many weight loss supplements as I did not have any time to go for gym or any dieting. But nothing seems to work on me. On the top of that was feeling very weak and I was looking older than my age. But one day, a doctor friend suggested Dr. Yogesh program. I joined him because I have trust on doctors. Really, Dr. Yogesh has taken too much efforts on us. I got results within 3 months and these results are permanent. Thank you, Dr. Yogesh. Best of luck.
Hey, I'm Hetal Dua. I'm a cake shop owner. I was struggling with my weight. My sugar level were erratic and I was on diabetic medication. I had tremendous hair loss problem. I was in depression. I literally tried everything from intermittent fasting, consulted many doctors, dietitians, and even yoga therapists. I wasted 3 to 4 years and wasted my money and time. But when I joined Dr. Yogesh Health Genetic Program, everything came on track. He first advised me to stop everything. I lost almost 12 kg weight. My sugar level came into control and my diabetologist also surprised to see my changeover. Thank you, Dr. Yogesh. I'm Kapil Patil, Finance Executive from Karnataka. My story is difficult to tell, but I want to help those needy people, so sharing the truth. I was suffering from male infertility. We were married since 10 years, and when we were planning for baby, that problems lies with me. My wife's all reports and tests were normal. Initially, I was in denial mode as I was athlete and sports person. I was doing exercise regularly and following good lifestyle, but my reports were showing some different story at all. I tried herbal, naturopathic, Ayurvedic medicines, even consulted specialists, but I wasted my time and money, nothing else. One day I saw Dr. Yogesh advertise on Facebook where he mentioned male hormones imbalance. I signed his program in December 2022. Within 1 month, my all reports came normal. My wife conceived and now she is 4 months pregnant. Thank you, Dr. Yogesh, for guidance on right time. प्रिय दर्शकों, मैं अपने पर बीती हुई कहानी बताने जा रही हूँ। कैसे मैंने अपने हेल्थ को निगलेक्ट किया था, उसके वजह से मुझे क्या क्या सहना पड़ा और सही समय पे जब मुझे उसका सॉल्यूशन मिला तो मेरे जीवन में क्या बदलाव हुए, सब कुछ मैं आज बताने जा रही हूँ। मैं अपनी ये कहानी आपसे शेयर करने के लिए अत्यंत उत्साहित हूँ। मेरा नाम है प्रिया अय्यर और मैं 26 वर्ष की हूँ। मैं एक स्कूल की अध्यापिका हूँ। मेरी हेल्थ के मुद्दों से मैं पूरी तरह से परेशान थी। मेरे वज़न में अत्यधिक बढ़ोतरी हो रही थी। मेरे मेंसेस अनियमित थे। मुझे ये जानकर निराशा हुई कि मेरे ओवरीज में गांठें हैं। मुझे PCOD है। मैं आसानी से घबराने लग गई थी। मेरा चिड़चिड़ाहट में आना आसान हो गया था क्योंकि मेरा मूड बदलता रहता था। मैं उदास हो गई थी क्योंकि मुझे अपनी दैनिक गतिविधियों में रुचि खो दी थी और सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे चेहरे पर एक्ने की समस्या शुरू हो गई थी जो मेरे सुंदर चेहरे को बिगाड़ रही थी। फ्रस्ट्रेशन में मैंने कई डॉक्टरों और एक्सपर्ट को दिखाया, कई डाइटिशियन और स्वास्थ्य गुरुओं की सलाह भी ली, लेकिन मेरे हेल्थ इश्यूज कम होने की बजाय बढ़ते चले गए। कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था। फिर एक दिन मेरी स्कूल की प्रिंसिपल मैडम ने मुझे सलाह दी कि डॉक्टर योगेश के एडवांस जेनेटिक स्पेसिफिक प्लान एक बार अवश्य देखें। मैंने ऐसे किसी के बारे में कभी सुना नहीं था, इसलिए मैंने इसे आजमाने का निर्णय लिया। मुझे खुद पर यकीन ही नहीं हो रहा था। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे 2 महीने के अंदर ही इम्प्रूवमेंट्स दिखाई देने लगे। सब कुछ बेहतर हो रहा था। मेरे पीरियड्स नियमित होने लगे। जैसे एडवाइस और गाइडेंस किया गया, मैं डाइट और लाइफस्टाइल की नियमितता का पालन कर रही थी जो मेरे जेनेटिक मेकअप के अनुसार डिज़ाइन किए गए थे और मैं बहुत तेज़ी से सुधार कर रही थी। 42 दिनों के अंदर मैं पूरी तरह से नई लेडी बन गई थी, अधिक ऊर्जाशील हो गई थी। मैंने 10 किलोग्राम से भी अधिक वजन घटाया था और मैं अधिक फोकस्ड, काम और कंपोज्ड हो गई थी। मेरी हेल्थ के हर पहलू में सुधार था। आज मैं अब बहुत खुश हूँ और मैं अपनी खुद की स्कूल ओपन करने की सोच रही हूँ और जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ के ग्रैब करने के लिए तत्पर हूँ। एवरीथिंग इज पॉसिबल क्योंकि मिरेकल्स होते हैं। आप बस सही समय पर सही जगह पर हो। धन्यवाद। So friends, this video is not for me. Credit goes to my ever-increasing community where clients are super excited to share their feedbacks which inspire me to work more and more efficient way. This video is about you and how we can work together to transform your health so that you can keep yourself more fit and healthy and work more efficiently towards betterment of society.
But friends, there are some misconceptions. Let me share them with you. It is difficult to lose weight. We have to do heavy workouts. You have to do crash diets. You have to give up your favorite food. You need to go to the gym or else it won't happen. Once you got any lifestyle disorder, it will never reverse. You cannot stop conventional medicines and you will have to take it lifelong. Now, you have two options. Option number 1. Try and do it alone or join some dietitian, online health guru or so-called non-medical expert and spend thousands of rupees, great frustration with not much result, wasting valuable 3 to 5 years of your life. Option number 2. Learn the proven method from someone who has done it several times. What will you choose? If you are still here with me and want to choose option number 2, then game plan is ready for you. Let's walk you through the game plan of Health Genie. Number 1. Get to know you are your DNA Kundli. Know what is good for you, what is bad for you. Customized neurogenomic. Number 2. Correct your subconscious mind and root causes, which is about reprogramming mind and body. Number 3. Connect yourself to higher consciousness through mindfulness. And number 4. Rejuvenate. Sleep and stress management. Now, let me ask you a simple question. What you will expect in 43 days, in 90 days, and in 6 months? Hi, I'm Sanjana Singh, 28 years old, HR manager by profession. Before I discovered Health Miracles genetic specific programs, I was really struggling with my health. I had been suffering from hormonal imbalances for years, which caused menstrual irregularities and eventually led to a diagnosis of polycystic ovarian disease. On top of that, I was battling depression. Overall well-being improved. Months later, I can confidently say that Health Miracle genetic specific programs have been a true game changer for me. I finally feel like myself again. I'm grateful for the incredible support and expertise provided by Health Miracles team. हार्मोन्स जो है वो बैलेंस में रहते हैं। दोस्तों, ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। देखिए दोस्तों, अगर हार्मोन्स को बैलेंस में रखना है तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के बारे में आप लोगों ने सभी ने बहुत सुना होगा कि एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। तो जी हाँ, बिल्कुल यही साइंटिफिक रीज़न है, यही बात है कि अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, वीक में 7 दिन नहीं कर सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट 3 से 4 दिन या 5 दिन ज़रूर से समय निकालना चाहिए इसके लिए। 5 दिन डेली 1 आवर एक्सरसाइज करने से, जिनमें आप कार्डियो कर सकते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके हार्मोन्स पर। और कार्डियो भी आप जिस फॉर्म में कंफर्टेबल हो, आप जिमिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। जिस फॉर्म में आपको कंफर्टेबल हो, एक्सरसाइज जो है वो होती रहती है। वो आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करती है, वो आपके बॉडी के इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर देती है, जिसके कारण हार्मोनल बैलेंस जो है वो शेप में रहता है। इसलिए एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके हार्मोन्स को बैलेंस रखने के लिए। आपको एक्सरसाइज 7 दिन में कम से कम 5 दिन ज़रूर करनी चाहिए और मिनिमम 1 आवर तक, 1 घंटा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके हार्मोन्स जो है वो बैलेंस रखने के लिए जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा ब्राइट रहेगी। अब दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट तो हमने जान लिया, लेकिन खाने पीने में आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा? खाना पीना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों यहाँ पर। तो खाने पीने के अंदर जो सबसे पहली बात है वो है आपकी डाइट के अंदर प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए। प्रोटीन जो होता है उसके अंदर एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं जो हार्मोन्स को बैलेंस रखने में हेल्पफुल होते हैं। प्रोटीन किन चीज़ों से मिलता है? देखिए, प्रोटीन अगर हम वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेबल्स में से, और यहाँ पर ऑप्शन थोड़े लिमिटेड हो जाते हैं, पर फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, छाछ, दालें, सभी प्रकार की जो दालें रहती है वो, सोयाबीन है, पनीर, इन चीज़ों के अंदर प्रोटीन बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है। कुछ सब्जियों में भी होता है। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जहाँ पर प्रोटीन होता है, जैसे कि नट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, बादाम है, अखरोट है, इन सभी में अच्छी मात्रा में प्रोटीन जो है वो आपको मिल जाएगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो डेफिनेटली आपके पास ऑप्शन ज़्यादा है। फिशेस है, चिकन है, इन सभी चीज़ों से प्रोटीन आपको मिलता है और प्रोटीन का जो अमाउंट होता है वो आप सही से गेन कर पाते हो। एग्स एज अ गुड फॉर्म ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन की मात्रा आपकी डाइट के अंदर ज़्यादा है या नहीं, ये आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो भी परेशान मत होइए,
क्योंकि आपके पास भी कुछ ऑप्शन जो है वो डेफिनेटली हो सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि डाइट से आपको जो प्रोटीन है वो फुलफिल नहीं हो रहा, तो आजकल सप्लीमेंट्स जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। प्रोटीन सप्लीमेंट पर हम लोग स्ट्रांगली कहते हैं कि सप्लीमेंट्स में जाने की जगह पर आप नेचुरल फॉर्म में प्रोटीन इनटेक ले तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि वो आप लॉन्ग रन में उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसमें सारे ही प्रोटीन शेक्स जो है वो अवेलेबल रहते हैं, उसका भी प्रयोग जो है वो आप कर सकते हैं। आपका जो फैट है, देखिए घी, तेल, ये हर इंसान खाएगा ही, थोड़ा बहुत तो हर इंसान लेते ही है, और उसमें कौन सा लेना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। फैट्स के अंदर जो डेयरी फैट्स होते हैं, जो बेटर होते हैं, उनमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स का अमाउंट ज़्यादा होता है। ऑयल्स में जैसे कि ऑलिव ऑयल है, फिर नट्स वगैरह जो रहते हैं, ये वाला जो फैट होता है ये अच्छा वाला फैट होता है। आपने सुना होगा कि अच्छा फैट होता है और एक खराब फैट होता है। तो यहाँ पे हमें फोकस करना है गुड फैट्स के ऊपर, जो कि आपको मिलेंगे ऑलिव ऑयल्स और डेयरी प्रोडक्ट्स में से। तो ये थोड़े बहुत बेटर फैट्स जो है वो इनमें होते हैं, जिन्हें मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा मात्रा में होते हैं। रिफाइंड शुगर्स का प्रयोग कम मात्रा में करना है। आपको जंक फूड यानी कि कार्ब्स का इंटेक, जैसे बहुत बार आपकी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है, तो वो आपको ज़्यादा प्रयोग में नहीं लेनी चाहिए। बेवरेजेस यानी कि लिक्विड में सिर्फ शुगर जा रही है, और बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स होती है, लिक्विड जूसेस होते हैं, उनका प्रयोग बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये बहुत सारा जंक फूड होता है, जैसे कि बिस्किट्स है, कुकीज़ है, केक्स है, ब्रेड है, इनका यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैदे का प्रयोग सबसे कम होना चाहिए, या फिर अगर हम रेकमेंड करें तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो खाने हैं, ये आइटम्स होते हैं, इनका साइड इफेक्ट बहुत होता है। ये आपकी बॉडी में जाते हैं, शुगर रिलीज कर देते हैं, जैसे कि लॉन्ग रन में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है, पीसीओडी जैसी बीमारियां डेवलप होती है, और आप जैसे परेशान होते हैं, मूड चेंजेस होने की शुरुआत हो जाती है। और आपको इन सभी चीज़ों का प्रयोग थोड़ा कम मात्रा में करना चाहिए। आपको गेहूं जैसे होल ग्रेन्स लेने चाहिए, जिसका मतलब है रिफाइंड ग्रेन्स की जगह होल ग्रेन्स लेने हैं। गेहूं को भी अगर आप रिप्लेस कर पाए तो जौ, बाजरा, मकाई, ओट्स, इससे रिप्लेस कर सकते हैं। ये बेटर ऑप्शन है, क्योंकि इन सभी का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो रहता है वो काफ़ी लो होता है। वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को होने से रोकता है, आपको पीसीओडी जैसी बीमारियों से बचाता है। तो बेसिकली खाने के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस हुए, वो आपको काफ़ी हेल्प करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हार्मोनल लेवल के चेंजेस की वजह से स्ट्रेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, किस तरीके से स्ट्रेस बढ़ता है। स्ट्रेस जो होता है वो आपके हार्मोन्स को बहुत जो है वो रीअरेंज कर देता है। आपने बहुत कॉमनली सुना होगा कि कोई महिला प्रेग्नेंट होती है या प्रेगनेंसी जब प्लान कर रही होती है, तो हम लोग बहुत कहते हैं कि आप स्ट्रेस मत लीजिए। ऐसा हम क्यों कहते हैं? अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तब भी हम मना करते हैं, क्योंकि स्ट्रेस जो होता है वो हार्मोन्स को हिला देता है, डिस्टर्ब कर देता है। तो स्ट्रेस बहुत कम से कम रहना चाहिए। ऑब्वियसली कहना आसान है स्ट्रेस मत लो, पर एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि दोस्तों लाइफस्टाइल ही ऐसा हो चुका है कि स्ट्रेस हो ही जाता है। तो लेकिन इनको अगर हमें टैकल करना आना चाहिए, किस तरीके से टैकल करना है वो हमें समझने की ज़रूरत है। क्योंकि जब स्ट्रेस रहता है तो बॉडी के अंदर धीरे धीरे, जब लंबे समय के लिए स्ट्रेस बना रहता है, तो कॉर्टिसोल लेवल जो है वो धीरे धीरे थोड़ा हायर साइड जाना शुरू हो जाता है, जिससे कि आपके हार्मोन्स रिच हो जाते हैं और उसे डील करना मुश्किल हो जाता है। डील कैसे किया जाता है? तो इसके लिए ऑप्शन है आपके पास, जैसे कि योगासन है, मेडिटेशन है, मसाज थेरेपी है, म्यूजिक थेरेपी है। देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस जो आप सर्च करके वो देख सकते हैं और उसको ट्राई कर सकते हैं। और ये सिलेक्शन आपके कंफर्ट लेवल के हिसाब से आप कर सकते हैं, ताकि स्ट्रेस भी ना बने और आप उस स्ट्रेस को डील करना शुरू करें। दोस्तों आपके क्या विचार है हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में? आपने कभी ऐसे चैलेंजेस फेस किए हैं? अगर फेस किए हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, तो हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। आपके लिए वो वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे। दोस्तों ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जब किसी महिला को 1 साल तक पीरियड्स नहीं आते तो मेनोपॉज की समस्या पैदा होती है। मेनोपॉज से पहले और मेनोपॉज के दौरान एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, क्योंकि महिला के ओवरीज हार्मोन उत्पादन के स्तर को सामान्य बनाने की लगातार कोशिश में लगे रहते हैं। दोस्तों मेनोपॉज के लक्षण किसी भी महिला के लिए दर्द और परेशानियों से भरे हो सकते हैं। अधिकांश महिलाएं 45 से 55 साल की उम्र के बीच मेनोपॉज का अनुभव करती है, जो कि जैविक उम्र बढ़ने का एक स्वाभाविक हिस्सा है। मेनोपॉज धीरे धीरे हो सकता है, आमतौर पर मासिक धर्म चक्र में बदलाव के साथ शुरू होता है। मेनोपॉज फीमेल की लाइफ का एक ऐसा पड़ाव होता है दोस्तों, जिसे हर किसी से गुजरना होता है।
कभी ये चेंज ओवर बहुत ही स्मूथ होता है तो कभी ये बहुत ही परेशानी वाला भी होता है, जिसे हम कभी कभी मिड लाइफ क्राइसिस के नाम से भी जानते हैं। तो क्या होता है ये मेनोपॉज, क्या चेंज आप इसमें एक्सपेक्ट करते हैं, और ऐसा आप क्या करें कि ये फेज आपकी जो लाइफ है वो इजीली आप इसको पास ऑन कर सके इसके साथ, और किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, और बड़ा ही ग्रेसफुली हम अपनी एजिंग को एक्सेप्ट करें। दोस्तों, मेनोपॉज यानी कि महावरी का बंद हो जाना। हम ट्रीटमेंट ऑफ मेनोपॉज के बारे में बात करेंगे। अगर एक्सपर्ट के एक्सपीरियंस की बात की जाए तो ज्यादातर लेडीज को डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस से अपने सिस्टम पे कंट्रोल मिल जाता है। बहुत कम ऐसे केसेस आते हैं जिनको हार्मोन्स और दवाइयों की सहायता लेनी पड़ती है। इसलिए ट्रीटमेंट ऑफ मेनोपॉज के इस वीडियो में हम डाइट इन मेनोपॉज के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, मेनोपॉज की सारी प्रॉब्लम्स की वजह एस्ट्रोजन हार्मोन्स की कमी से होती है। दोस्तों, एक ऐसा पदार्थ है सोयाबीन, ये पीस कर आप अपने आटे में मिला सकते हैं ताकि रोटी में आप खा सके इसको, या उपमा बना सकते हैं। टोफू, पनीर, सोया मिल्क, रोस्टेड स्नैक्स, चिप्स और नगेट्स, और इसके अलावा और भी तरीके होते हैं सोयाबीन लेने के, जिससे कि आपको इसमें सहायता मिलती है जो आपका डाइट का एक हिस्सा बन सकता है। फ्लैक्स सीड्स में भी बहुत अच्छी मात्रा में फाइटो एस्ट्रोजन होते हैं। इनफैक्ट आप कुछ फ्लैक्स सीड या चिया सीड्स ग्राइंड करके छोटी सी बोतल में रख सकते हैं डाइनिंग टेबल पे, ताकि आप अपने सलाद में या दलिया में मिक्स करके इसको ले सकें। कुछ सब्जियों में जैसे कि ब्रोकली, पालक, इनमें भी ये होता है, और कई सारी दालें, राजमा, छोले, उनमें भी ये प्रेजेंट होते हैं। इसको लेने से आपकी नाइट स्वेट्स और हॉट फ्लैशेस, बोन मास, इसमें फायदा मिलता है। मेनोपॉज के बाद हार्ट डिजीज का प्रोबेबिलिटी जो है वो ज्यादा हो जाता है दोस्तों। और दोस्तों, यहाँ पर कुछ वेट इश्यूज भी होते हैं, इसलिए आपको इस एज पे सैचुरेटेड फैट्स कम लेना चाहिए और प्रोसेस्ड फूड कम लेना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि जो जैम, सॉस, अचार और जिस भी चीज को आप डीप फ्राई करते हैं, जैसे कि कचौड़ी, समोसा या मिठाइयाँ, केक, पेस्ट्रीज, इन सब की मात्रा आपको खाने में कम करनी चाहिए। और इसकी जगह आपको ज्यादा लेना चाहिए फाइबर रिच फूड, जैसे कि ताजे फल, सब्जियां, होल ग्रीन सीरियल्स, क्योंकि दोस्तों इन ताजे फल और सब्जियों में बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी एनहांस करते हैं। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी की शक्ति बीमारियों से लड़ने की जो है वो इंक्रीज करते हैं, जो इस एज में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कुछ कैंसर से भी ये आपको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। फाइबर हमारी बॉडी में बहुत देर तक एक फुलनेस की जो फीलिंग जो है वो हमें देता है, जो कि हमें वेट और कई सारी बीमारियों से बचा के रखता है। ब्रेकफास्ट में होल ग्रीन दलिया का एक बाउल, उसमें टोन मिल्क और साथ में थोड़ी सी फ्लैक्स सीड्स या फिर चिया सीड्स आप डाल लो, और एक फ्रूट जो कि मौसम का हुआ जैसे पपीता, बनाना, एप्पल, ये ले लो। इन छोटे छोटे चेंजेस से काफी बड़े फायदे हो सकते हैं आपकी हेल्थ को। इस एज पर आपको हाइड्रेशन का भी अपना ख्याल रखना है। 8 से 12 गिलास पानी के यूजुअली रिकमेंडेड है अगर आपको कोई भी बीमारी नहीं है तो, क्योंकि अगर आप डिहाइड्रेटेड हो तो थकान और चिड़चिड़ापन इंक्रीज हो जाता है, जो कि अक्सर मेनोपॉज में देखने को मिलता है। दोस्तों, ध्यान से अगर देखा जाए तो ये फीमेल की लाइफ में एक बहुत ही अहम पहलू होता है। जैसे कि हमने पहले भी बात की कि हर फीमेल की ओवरीज में उन्होंने लाइफ टाइम में कितने एग्स बनाने हैं, उसका डिसीजन जब वो अपने मदर के वोम में होती है तभी हो जाता है। और इस रिजल्ट्स में हर मंथ कुछ ना कुछ एग्स इस्तेमाल करते रहते हैं, हमारा रिप्रोडक्टिव लाइफ चलता रहता है, और एक स्टेज ऐसी आती है जब ओवरी काम करना बंद कर देती है। नेचुरली उसके फंक्शन सीज हो जाते हैं और उसके बाद पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। इस फेज को हम मेनोपॉज बोलते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो एवरेज एज ऑफ मेनोपॉज 46.2 ईयर्स है, यानी कि ज्यादातर लेडीज जो महिलाएं हैं इनका मेनोपॉज इस एज तक आ जाता है। लेकिन कभी कभी फीमेल का मेनोपॉज लेट भी आता है, यानी कि 52 साल पे 53 ईयर्स या 54 ईयर्स तक आता है। अगर आपका मेनोपॉज जो है वो 55 साल तक भी नहीं आता तो जरूरी है कि आप डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि पीरियड्स का बहुत लंबे टाइम तक चलना किसी बीमारी का लक्षण हो सकता है। ऐसे ही वो लेडीज जिनके पीरियड्स 40 साल से पहले बंद हो जाते हैं, इसे हम बोलते हैं प्री मैच्योर मेनोपॉज, तो इन्हें भी हेल्थ इश्यू आ सकते हैं। अगर आपका प्री मैच्योर मेनोपॉज हो रहा है तो ऐसा आप क्या करें कि जिससे आगे चल के आपको प्रॉब्लम ना हो। क्या ये नॉर्मल है या इसमें कुछ कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है? पर इस केस में आइडियल यही रहता है कि आप डॉक्टर से मिलिए। अगर मेनोपॉज नेचुरली आता है, यानी कि नेचुरली ओवरीज जो है वो फंक्शन एजिंग की वजह से बंद हो रहे हैं, तो उसे हम नेचुरल मेनोपॉज कहते हैं। लेकिन कभी कभी किसी बीमारी या किसी डेंजरस बीमारी जैसे कि कैंसर की ट्रीटमेंट की वजह से या कभी कोई सर्जरी की वजह से ओवरीज जो है या तो निकाल दी जाती है या ओवरीज के फंक्शन समय से पहले खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से
टाइम से पहले पीरियड्स आ जाते हैं, इसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल मेनोपॉज। तो अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस अगर था, या फिर ओवेरियन ट्यूमर्स थे, या कैंसर की ट्रीटमेंट की वजह से ओवरीज निकालने पड़ गए, या फिर कीमोथेरेपी या रेडिएशन आपने लिया है जिसकी वजह से ओवरीज के फंक्शन बंद हो गए, या कभी कोई प्रोलॉन्ग मेडिकेशन या स्ट्रेस के चलते ऐसा होता है, तो ओवरी के फंक्शन टाइम से पहले बंद हो जाते हैं और इसे भी हम आर्टिफिशियल मेनोपॉज कहेंगे। जैसे ही कोई महिला पेरी मेनोपॉज से गुजरती है, उसका गर्भाशय थोड़ा सा सिकुड़ने लगता है। इस कंडीशन में एंडोमेट्रियम प्रिडिक्टेबल मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए शेड बनाना बंद कर देती है। मेनोपॉज के बाद काफी महिलाएं स्पॉटिंग या अनियमित रक्तस्राव की शिकायत करती है, जो कुछ दिन तक हल्का या भारी मात्रा में रहता है। अब दोस्तों, बेसिकली मेनोपॉज में होता क्या है कि ओवरी से जो हार्मोन निकलता है जिसे हम बोलते हैं एस्ट्रोजन, ये निकलना बंद तो हो जाता है और ये एस्ट्रोजन हार्मोन का जो फंक्शन है वो हमारी स्किन को मेंटेन करने के लिए, हमारी टिश्यू हेल्थ, खास करके रिप्रोडक्टिव सिस्टम और पेल्विक ऑर्गन्स जो कि उसकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए होता है, और साथ ही साथ ये हमारी हार्ट की हेल्थ को मेंटेन करेगा, हमारी बोन्स की हेल्थ को मेंटेन करेगा और कहीं ना कहीं ये हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग को भी अफेक्ट करता है। तो जैसे ही ये हार्मोन हमारी बॉडी से नेचुरली या आर्टिफिशियली निकल जाता है, तो इसके विड्रॉवल सिम्टम्स हमें मिलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं मेनोपॉजल सिम्टम्स। ये हो सकते हैं हॉट फ्लैशेस, यानी कि आपको एकदम से बहुत गर्मी का लगना। तकरीबन 70 से 75% फीमेल मेनोपॉज के दौरान हॉट फ्लैशेस को एक्सपीरियंस करती है। एकदम से आपको गर्मी लगने लगेगी, घबराहट होगा और ठीक हो जाएगा। और ऐसा एक दिन में कई बार हो सकता है। नाइट स्वेट्स, रात में इतना आपको पसीना आना कि आपके कपड़े गीले हो जाते हैं, इतनी गर्मी लगना कि कई बार उठकर आपको शावर लेना पड़ सकता है। हार्मोनल कमी के चलते वजाइनल ड्राइनेस हो जाती है, उसके चलते प्राइवेट एरियाज में इचिंग होना, वहां पे बार बार इन्फेक्शन होना, सेक्सुअल डिजायर्स का कम होना या सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहना, इस टाइप के कंप्लेंट्स भी आपके हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपके क्या विचार है जिस तरीके से मेनोपॉज के हमने सिम्टम्स बताए, जिसके उपचार हमने बताए, उसके बारे में अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। अगर इस टॉपिक के बारे में आपको कोई सवाल या कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब भी आपको दे देंगे। और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल ड्रिंक है जो कि बहुत ज्यादा मदद करने वाला है आपके पीरियड्स को रेगुलेट करने के लिए। आपके मन में सवाल होंगे कि क्या रीजन है जिसकी वजह से आपके पीरियड्स जो है वो नहीं आ रहे हैं, और क्या करें जिससे कि जो पीरियड्स है वो रेगुलेट हो जाए। अगर आप भी अपने पीरियड्स को डिले होने की वजह से या उनके डिस्टर्ब होने की वजह से परेशान हैं, सो मेक श्योर कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपकी लाइफ को एक बहुत बड़ा बदलाव देने वाला है। और इस ड्रिंक के साथ सिर्फ 2 या 3 दिन में ये जो कंजम्पशन है, ये करने से आपके जो पीरियड्स है वो समय से आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी माताएं, बहनें जो है वो इतनी ज़्यादा परेशान रहती है कि अपने पीरियड्स के डिस्टर्ब होने की वजह से ना तो वो शेयर कर सकती है किसी के साथ, और ना ही इस प्रॉब्लम में जो है वो जी सकती है। पीरियड्स एग्जैक्टली डिस्टर्ब क्यों होते हैं? सबसे पहला तो ये रीजन होता है दोस्तों कि हमारे पीरियड्स जो डिस्टर्ब होते हैं, इसकी वजह आती है हमारी लाइफस्टाइल। बहुत बार हम कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो बनने वाले हार्मोन्स है, जो एंजाइम्स है, वो फ्लक्चुएट करने लगते हैं। और इस फ्लक्चुएशन की वजह से हमारी बॉडी जो है उसके अंदर जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है, जो कि एक्चुअली हमारे पीरियड्स लाने के लिए जिम्मेदार है, वो रेगुलेट नहीं कर पाता, और इसकी वजह से हमें बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा पीसीओडी, पीसीओएस जैसी समस्याएं भी होती है, वो भी पीरियड्स को बहुत बार अप एंड डाउन करती है। इसके अलावा आपके शरीर में होने वाला थायराइड, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्ट्रेस, ये भी कुछ ऐसी बीमारियां हैं, या इन बीमारियों के लिए खाई जाने वाली कुछ ऐसी दवाइयां जिनके साइड इफेक्ट्स के रूप में हमारे शरीर में बीमारियां जो है या पीरियड जो है वो फ्लक्चुएशन अपना घर बना लेता है। सो मेक श्योर कि आप अपने रूटीन के अंदर अगर अपने पीरियड्स को रेगुलेट करके रखना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान रखें। आपकी लाइफस्टाइल के अंदर प्रॉपर एक्सरसाइज होनी चाहिए, डाइट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, प्रॉपर नींद लेनी है, और साथ में
आपको जो दवाई आपकी चल रही है उन्हें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेना है, क्योंकि बहुत बार हम बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ खा जाते हैं जिसके साथ हमारा जो शरीर है वो बीमारी को ठीक करने का काम नहीं कर पाता, लेकिन उसकी वजह से बहुत सारे और भी साइड इफेक्ट आ जाते हैं। तो डॉक्टर जो भी है, एक महारत हासिल करी है वो पर्सन ने मेडिसिन के अंदर, और उनको आपको जरूर से कंसल्ट करना है ताकि वो आपके शरीर में बीमारियों को ठीक करने के लिए सही दवाइयाँ दे। तो दोस्तों, हम समझते हैं कि अगर आप यहाँ पर समझ ही गए होंगे कि आपको एग्जैक्टली अपने पीरियड्स को रेगुलेट करने के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपको लगता है कि जो एक्चुअल डेट थी उस एक्चुअल डेट से आपके पीरियड्स अगर डिले हो गए और आपके पीरियड्स नहीं आए, तो डेफिनेटली आप इस ड्रिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हम अभी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। लेकिन इस ड्रिंक को इस्तेमाल करने से पहले एक चीज जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि अगर आप एक मैरिड है या आप अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं या किसी को भी डेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका साइकिल स्किप होता है तो सबसे पहले आपको अपना एक प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना है कि कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं है, क्योंकि अगर आप प्रेग्नेंट है तो उसकी वजह से आपका साइकिल नहीं आ रहा है। तो ये ड्रिंक आपको नहीं लेना है, फिर आपको सीधा गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करना है और उस कंडीशन में वो आपकी मदद कर पाएंगे। ये ड्रिंक हमें तभी लेना है जब हमने टेस्ट किया और टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव आया, मतलब कि आप प्रेग्नेंट नहीं है, तो आप इस ड्रिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दिन लीजिए रात को सोने से पहले। अगर आपको अगले दिन पीरियड आ जाते हैं तो दोबारा लेने की इसकी जरूरत नहीं है, नहीं आता तो दूसरे दिन लीजिए रात को, और अगले दिन भी अगर नहीं आता तो तीसरे दिन लीजिए। 3 दिन से ज्यादा आप इस ड्रिंक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस ड्रिंक का इस्तेमाल करना है, कैसे आपको इसको बनाना है। पर इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं, इसमें से इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है और इससे अगर आपकी लाइफ में कोई वैल्यू जुड़ रही है, तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके आपका सपोर्ट जरूर से दिखाइएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इस ड्रिंक को बनाने के लिए हमें एक साफ बर्तन चाहिए। इस बर्तन के अंदर हम लगभग एक गिलास पानी डाल देंगे। इस 1 गिलास पानी के अंदर डालने के बाद हमें यहाँ पर लगभग 1 से 1.5 इंच जो कूटा हुआ अदरक है वो इसके अंदर डालना है। अदरक के अंदर कुछ ऐसे नेचुरल एंजाइम होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर थोड़ा सा हीट क्रिएट करते हैं और हमारे शरीर में जो हार्मोन्स जो होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जिम्मेदार है पीरियड्स लाने के लिए, उनको स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से अदरक यहाँ पर डालना बहुत जरूरी हो जाता है। आप किसी भी मौसम में इस ड्रिंक को ले रहे हैं, आपको अदरक जरूर से डालना है। अदरक आपको स्किप नहीं करना। और इस 1 गिलास पानी के अंदर 1 से 1.5 इंच जब अदरक आप डालते हो कूट कर, उसके बाद दूसरी चीज जो आपको डालनी है वो यहाँ पर डालनी है 1 चम्मच जीरा, और तीसरी जो चीज है वो है 1 चम्मच सौंफ। दोस्तों, जीरा और सौंफ जो है वो उसके अंदर नेचुरली हमारी ब्यूटी के हार्मोन्स जो है उसको स्टिमुलेट करने की ताकत होती है, और साथ ही साथ ये हमारे शरीर के अंदर जो पीरियड से रिलेटेड जो हार्मोन्स हैं उसको रेगुलेट करने में भी हमारी मदद करता है। सो इन दोनों ही चीजों को 1-1 चम्मच लेकर के हमें मिक्स कर देना है और उसे कूट लेना है। कूट के इसका एक फाइन पाउडर जैसा बन जाता है। अब इस पाउडर को हमने इस अदरक के साथ जो हमने पानी में मिलाया था उसके साथ में ऐड कर देना है। अब इसे अच्छे से उबाल देना है, और जब ये अच्छे से उबल जाए, अब इसके अंदर जो चौथी चीज आपको डालनी है वो है हल्दी पाउडर। दोस्तों, यहाँ पर हल्दी का रोल है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हल्दी जो है वो नेचुरल माइक्रोबायल एजेंट जो है वो बहुत ही सारे इन्फेक्शन से हमें बचाता है, और साथ ही साथ शरीर की जो इम्यूनिटी है उसको भी बेहतर बनाने में भी हमारी मदद करता है। अब इन चारों चीजों को इस पानी के अंदर डालने के बाद आपको बहुत अच्छे से उबालना है, और तब तक उबालना है जब तक कि पानी आधा ना रह जाए। जब ये पानी आधा रह जाए, अब आप इसे छन्नी से छानने के बाद आप ऐसे ही इसे पी सकते हैं। लेकिन दोस्तों, थोड़ा सा टेस्ट इसका कसेला जैसा होगा क्योंकि हमने यहाँ पर अदरक डाली हुई है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप इसमें 1 चम्मच शहद भी मिला सकते हैं, लेकिन ये शहद ऑर्गेनिक होना चाहिए, तभी जाकर ये आपको जो बेनिफिट्स है, जो बेस्ट बेनिफिट है इसके, वो आपको मिल सकते हैं। सो दोस्तों, ये इस तरीके की जो ड्रिंक है वो बनाकर आप ले सकते हैं। जब भी आपका पीरियड स्किप होता है, आपको इस ड्रिंक को बनाकर इसको समय से पी लेना है, जिससे ये वापस रेगुलेट आप कर सकते हो। अगर इस ड्रिंक को लेने के बाद भी आपने 3 दिन लिया और फिर भी अगर आपका पीरियड रेगुलेट नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली आपको गायनेकोलॉजिस्ट की मदद लेनी चाहिए। वो आपका पूरा अल्ट्रासाउंड करेंगे, सोनोग्राफी करेंगे, और वो आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या रीजन है जिसकी वजह से आपका पीरियड जो है वो रेगुलेट नहीं हो रहा। क्योंकि हर बीमारी को हम घर में बैठकर ठीक नहीं कर लेंगे दोस्तों, ये पॉसिबल नहीं है। और अगर किसी व्यक्ति ने उस बीमारी को ठीक करने के लिए महारत हासिल की है तो उनकी जरूर से हमें मदद लेनी चाहिए। सो अगर आपको लगता है कि आपका पीरियड जो है ये ड्रिंक लेने के बाद भी रेगुलेट नहीं हुआ,
गायनेकोलॉजिस्ट को जरूर से कंसल्ट करें ताकि आप समय रहते अपनी किसी भी बीमारी को बढ़ने से पहले ही इवेल्युएट करके, चेक करके, एग्जामाइन करके आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकें। और जैसे कि दोस्तों हमने आपको पहले भी बताया कि ये ड्रिंक आपको एक दिन लेना है, अगर दूसरे दिन रिजल्ट आ जाता है तो दूसरे दिन वापस से इसको लेने की जरूरत नहीं है, और अगर दूसरे दिन भी रिजल्ट नहीं आया तो वापस से आप इसको दूसरे दिन ले लीजिए। अगर तीसरे दिन उठकर भी रिजल्ट नहीं आता या फिर तीसरे दिन में कहीं पे भी रिजल्ट नहीं आता तो थर्ड डे भी आप ले सकते हैं, बट 3 दिन से ज़्यादा आपको इसको नहीं लेना है। तो दोस्तों हम ये उम्मीद करते हैं कि ये ड्रिंक हमने आपको जो बनाना सिखाया ये आपके पीरियड्स को रेगुलेट करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा, और इसी की मदद से आपकी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स हैं उनको बैलेंस करके आपके शरीर को एक बहुत ज़्यादा जो है एक सिनर्जिक जो फील देता है वो ये देने में हेल्प करेगा। दोस्तों आपके क्या विचार है इसके बारे में? अगर आपने ट्राई किया है या आप ट्राई करके यहाँ पर वापस इस वीडियो में आके नीचे हमें कमेंट करके अपने रिजल्ट्स जरूर से बताइएगा। अगर ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो रेलेवेंट पर्सन के साथ जिनको मदद की जरूरत है या अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर दें, और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि महिलाओं को वजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है, क्यों होता है, क्या ये नॉर्मल भी हो सकता है, कब वो एबनॉर्मल होता है और इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, और अगर आपको कभी लाइफ में किसी टाइम पे इन्फेक्शन हुआ है तो नेक्स्ट टाइम वो ना हो उसके लिए बचाव के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं कि वजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है। तो दोस्तों वजाइनल डिस्चार्ज एक पदार्थ है, एक ऐसा लिक्विड या फिर चिपचिपा पदार्थ होता है जो वजाइना में से एक्सपेल आउट होता है, और ये बनता है मोस्टली पानी से, म्यूकस से और कुछ सेल्स जो कि वजाइना के यानी कि वजाइना के मुंह से जो है वो एक्सपेल आउट होते हैं उन सेल्स से, और कुछ बैक्टीरिया जो कि नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं वजाइना में उनके पीएच को मेंटेन करने के लिए, और एक नॉर्मल हेल्दी वजाइना को बनाए रखने के लिए तो कुछ बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं इसमें दोस्तों। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या वजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल भी हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। कुछ अमाउंट का डिस्चार्ज 2 से 5 ml तक अगर आपको डिस्चार्ज होता है, बिल्कुल क्लियर वाइट डिस्चार्ज है, उसमें कोई बदबू नहीं है, उस डिस्चार्ज से खुजली, जलन ऐसे कोई सिम्टम नहीं हो रहे, तो वो डिस्चार्ज एकदम नॉर्मल होता है जो वजाइनल डिस्चार्ज है। और दोस्तों जो नॉर्मल जो है वजाइनल डिस्चार्ज वो टाइम के साथ और हर महिला से महिला में वो वेरी कर सकता है, अलग अलग हो सकता है सब में। कुछ समय पे जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे, या अगर आपका एग रिलीज हुआ है ओव्यूलेशन के टाइम पे, या फिर आप कोई गोलियां ले रहे हैं जैसे कि गर्भ निरोधक की गोलियां ले रहे हैं, तो इन सब कंडीशन में डिस्चार्ज, नॉर्मल डिस्चार्ज भी ज्यादा क्वांटिटी में आपको दिखाई दे सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा डिस्चार्ज हो रहा है तो वो हमेशा ही एबनॉर्मल होगा। कुछ कंडीशंस ऐसी है जिसमें नॉर्मली भी वजाइनल डिस्चार्ज काफी बड़ी मात्रा में हो सकता है। अब बात करते हैं एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है। वजाइनल डिस्चार्ज एबनॉर्मल तब होता है जब इसमें से कोई भी कंडीशन जो है वो प्रेजेंट हो, जैसे कि आपको डिस्चार्ज के साथ साथ नीचे हिस्से पे वजाइना के चारों तरफ रेडनेस हो रही है, खुजली चलती है, जलन होती है, कुछ भी अजीब तरीके की कोई स्मेल है, या फिर आपके डिस्चार्ज की जो चिपचिपाहट है वो चेंज हो गई है, थिक हो गई है, डिस्चार्ज आपका दही जैसा गाढ़ा हो गया, या फिर उसमें आपको झाग दिखाई देते हैं, ग्रीन कलर का, येलो कलर का, किसी भी तरह का कोई कलर में ऑल्टरेशन हुआ हो, या फिर आपको पेन रहता है वो निचले हिस्से में, या फिर आपको इंटरकोर्स के टाइम पे जलन होती है, आपके पार्टनर को कोई सिम्टम है, उनको भी अपने प्राइवेट पार्ट्स पे आपके साथ इंटरकोर्स करने के बाद जलन महसूस होती है या कट लग जाते हैं, तो डिस्चार्ज एबनॉर्मल हो सकता है। आपको डिस्चार्ज के साथ साथ कुछ फीवर भी डेवलप हो रहा है, या पेशाब में कोई प्रॉब्लम, या ऐसे पेशाब में जलन होना, पेशाब बार बार आना, ऐसे कोई सिम्टम डेवलप हो रहे हैं, ये सब इंडिकेट करते हैं आपका डिस्चार्ज जो है वो एबनॉर्मल डिस्चार्ज है। तो बात करते हैं एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है इन्फेक्शन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्स में कहीं पर अगर इन्फेक्शन हुआ है तो आपको एबनॉर्मल डिस्चार्ज दिखाई दे सकता है। इसके अलावा आप जैसे कि आजकल बहुत बड़ा है टैम्पॉन्स यूज करते हैं, या फिर इंटरकोर्स के टाइम पे कॉन्डम यूज करते हैं, इन चीजों से आपकी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, जिसके चलते आपको डिस्चार्ज बाद में डेवलप हो सकता है। इसके अलावा आपने कुछ नए प्रोडक्ट यूज किए हैं, आपने अपना साबुन चेंज किया, या फिर कोई वजाइनल हाइजीन के लिए कोई प्रोडक्ट चेंज किया, तो उसके बाद अगर आपको डिस्चार्ज हो रहा है तो ये इंडिकेट करता है उस प्रोडक्ट को यूज करने से आपको एलर्जी हुई है।
तो ये कुछ कॉमन रीजंस है वजाइनल डिस्चार्ज के होने के, लेकिन मोस्टली जो कॉमन होता है वो होता है इन्फेक्शन। अगला क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि क्या आप वजाइनल डिस्चार्ज को घर पे बैठकर ठीक कर सकते हैं? तो दोस्तों जनरली प्रोफेशनल्स ये एडवाइस नहीं करेंगे। अब हमेशा अगर आपको कुछ भी एबनॉर्मल लगता है अपने डिस्चार्ज में, तो हमेशा अपने डॉक्टर के पास जाए, एक क्वालिफाइड गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाइए, क्योंकि सारे डिस्चार्ज एक जैसे नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि एबनॉर्मल डिस्चार्ज का केवल एक ही दवाई आती है, उसके लिए एक ही लाइन ऑफ मैनेजमेंट है और आपको बस यही दवाई लेनी है। कैसे भी डिस्चार्ज हो, कितना भी इसकी क्वांटिटी हो, आपको यही दवाई लेनी है, ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर सभी डिस्चार्ज अपने आप में अलग होते हैं। जो बैक्टीरिया है वो अलग टाइम पर डिस्चार्ज कॉज करते हैं, फिर जो यीस्ट इन्फेक्शन होते हैं उसमें अलग टाइप का डिस्चार्ज निकलता है। तो सबका मैनेजमेंट अलग होता है। और दोस्तों ये सबका मैनेजमेंट अलग होता है, इसकी वजह से इनकी दवाइयाँ जो है ये भी अलग आती है। अगर बात की जाए फंगस की या फिर यीस्ट का इन्फेक्शन हुआ है, तो आप उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन की दवाई ले रहे हैं तो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। इनफैक्ट वो फिर डेली टाइम के साथ इंक्रीज होता जाएगा। आपका प्रॉब्लम जो है वो ठीक तो नहीं होगा और साथ साथ में आप उसको और भी ज़्यादा खराब कर दोगे। तो इसके लिए घर पे खुद से डिस्चार्ज ट्रीट ना करिए, क्योंकि उसका नॉलेज आपको नहीं है, तो इसलिए आप उसको खुद से ही ठीक करने की कोशिश ना करिए। आप अपने डॉक्टर के पास जाइए जो प्रॉपर एग्जामाइन करते हैं आपको एग्जामाइन करने के बाद वो बताते हैं कि किस टाइप का डिस्चार्ज लग रहा है और उसके अकॉर्डिंग दवाइयाँ देते हैं। अगर आपके पार्टनर को भी कोई सिम्टम्स है, उनको भी कोई आपके साथ इंटरकोर्स करने में कुछ प्रॉब्लम्स होती है, जलन है या फिर कट लग जाते हैं, या उनको भी कोई डिस्चार्ज आता है उनके पीनस से, तो उनको भी साथ ही साथ ट्रीट किया जाता है। क्योंकि एक पार्टनर को ट्रीट करने और दूसरे को ना करे तो एक दूसरे से ट्रांसमिशन चलता रहता है। तो इसलिए एट अ टाइम दोनों को ट्रीट करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये तो हो गई एबनॉर्मल डिस्चार्ज के बारे में बात। नॉर्मल डिस्चार्ज क्या होता है, एबनॉर्मल डिस्चार्ज क्या होता है, क्या इनको घर पे ट्रीट किया जा सकता है, ये सारी चीजें हमने अब तक कवर करी। अब दोस्तों आपको कुछ टिप्स बताएंगे जो अगर आप डेली रूटीन में फॉलो करते हैं तो आपको एबनॉर्मल डिस्चार्ज से बचने में हेल्प मिल सकती है और वो प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आपको पहले भी डिस्चार्ज की प्रॉब्लम रह चुकी है तो आपको जरूर इन छोटी छोटी चीजों को फॉलो करना चाहिए, ताकि आपको दोबारा इन्फेक्शन ना हो, दोबारा डिस्चार्ज ना हो। तो इसमें सबसे पहले आता है, अगर आपको बार बार अपने वजाइना को वॉश करने की आदत है तो आप उसको स्टॉप कर दीजिए। क्योंकि जब भी आप जितनी बार वॉश करते हैं अंदर से, अगर आप वॉश करते हैं वजाइना को, तो नॉर्मली बैक्टीरिया, जो जरूरी बैक्टीरिया होते हैं इसके पीएच को मेंटेन करने के लिए, उसकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, वो वॉश आउट हो जाते हैं और फिर उसको ये प्रोन कर देता है, जो वजाइना है उसको ससेप्टेबल बना देता है, जो कि एबनॉर्मल बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को लीड कर सकता है। और अगर कुछ सॉल्यूशंस की बात की जाए तो दोस्तों पानी में उबालकर मेथी के दाने का सेवन करने से सफेद पानी की समस्या दूर हो जाती है। आप मेथी के दाने को 500 ml पानी में तब तक उबलने दे जब तक कि वो पानी आधा ना रह जाए, फिर इस पानी को ठंडा होने पर पी लें। कई लोगों को पसंदीदा भिंडी सफेद पानी की समस्या के इलाज के लिए एक अच्छा उपाय है। दोस्तों सफेद पानी की प्राकृतिक रूप से राहत पाने के लिए आप भिंडी को उबालकर उसके गाढ़े घोल का सेवन कर सकते हैं। कुछ महिलाएं भिंडी को दही में मिलाकर इसका सेवन करती हैं। फिर दोस्तों सफेद पानी को रोकने के लिए धनिये के बीजों का उपयोग प्राकृतिक उपचार के रूप में किया जाता है। इसके सेवन के लिए कुछ चम्मच धनिये के बीज को रात भर पानी में भिगोकर रखें और सुबह इस पानी को छानकर और खाली पेट इसे आप पी ले। ये बिना किसी जोखिम में आपके सफेद पानी का इलाज करने के प्राकृतिक उपचारों में से एक माना जाता है। ल्यूकोरिया को आंवला से भी ठीक किया जा सकता है। दोस्तों आप आंवले के टुकड़े को काट कर उसको धूप में सुखा ले, इन्हें पीस कर इसका पाउडर बना लें। अब 2 चम्मच चूर्ण ले इसका और उसमें उतना ही मात्रा में शहद मिलाए और इसका एक पेस्ट बना लें। एक बार जो पेस्ट तैयार हो जाता है तो प्रभावी उपचार पाने के लिए इस पेस्ट का दिन में 2 बार आप सेवन कर सकते हैं। आप आंवला पाउडर और शहद को पानी में मिलाकर पर्याप्त मात्रा में भी इसको पी सकते हैं दोस्तों, जो कि आपकी ऐसी कंडीशन में आपको काफी फायदेमंद हो सकता है। तो दोस्तों आपके क्या विचार है इस मुद्दे के बारे में? इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, जिसको भी इसकी जरूरत हो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उनको भी इसके बारे में पूरी जानकारी मिले। और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। हर लड़की के लिए खूबसूरती मायने रखती है, लेकिन चेहरे पर अनचाहे बाल इस खूबसूरती पर दाग जैसे होते हैं। हर लड़की ये अनचाहे बाल हटाना चाहती है, जिसके लिए वो थ्रेडिंग, ब्लीच, क्रीम या फिर दूसरे उपाय का सहारा लेती है। हालांकि इससे बाल तो साफ हो ही जाते हैं दोस्तों, लेकिन कई बार ये तरीके दर्दनाक भी हो सकते हैं। ऐसे में लड़कियों के मन में बार बार ये सवाल आता है कि चेहरे के बाल कैसे हटाएं
और दोस्तों इसी तरीके के काफी सवाल जिस समय आते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम आपको जवाब लेकर हम आया है आपके लिए। अनचाहे बाल हटाने के लिए डिफरेंट जो तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं, जो उपाय है वो आपको बताने वाले हैं। तो ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा दोस्तों। दोस्तों महिलाओं के चेहरे पर घने बाल होने के सबसे पहले तो रीजन क्या है? तो इसमें रीजन की बात की जाए तो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। दोस्तों इसमें महिला के अंडाशय में पुरुष हार्मोन का ज्यादा उत्पादन होने लगता है और साथ ही इस समस्या में महिला के अंडाशय में कुछ सिस्ट बनने लगती है। पीसीओएस का एक लक्षण चेहरे पर अनचाहे बाल आना ये भी है दोस्तों, और ये इन सब के आम कारण जो है इसमें से एक है। दूसरा रीजन अगर आपको बताए तो एड्रेनल ग्लैंड का कैंसर। दोस्तों ये त्रिकोणाकार के 2 ग्लैंड होते हैं जो किडनी के ऊपर मौजूद होते हैं। इसमें कैंसर या ट्यूमर होने के कारण महिलाओं के चेहरे में ज्यादा बाल आने की समस्या हो सकती है। अगला जो रीजन है वो है अंडाशय का कैंसर। अंडाशय में ट्यूमर या कैंसर की समस्या होने पर भी महिलाओं के चेहरे पर घने और अनचाहे बाल की समस्या हो सकती है। अगला रीजन अगर बताए तो वो है कुशिंग सिंड्रोम। दोस्तों इस समस्या में शरीर में कॉर्टिसोल नाम का जो हार्मोन है इसकी मात्रा बढ़ जाती है। यह समस्या इस हार्मोन से युक्त दवाइयों का अधिक सेवन करने से हो सकती है। ये दवाइयां अस्थमा, त्वचा की सूजन, कैंसर, आंत्र रोग, जोड़ों में दर्द और गठिया जैसी समस्या या फिर बीमारियों का उपचार करने के लिए उपयोग की जाती है। महिलाओं में कुशिंग सिंड्रोम का एक लक्षण चेहरे पर ज्यादा बाल आना ये भी माना जा रहा है। कुछ दवाइयां ऐसी हो सकती है, कुछ प्रकार की दवाइयों का सेवन भी महिलाओं के चेहरे और शरीर पर अनचाहे बाल आने का कारण बन सकती है। अब यहाँ पर दोस्तों फेशियल हेयर जो है वो नेचुरल है, लेकिन ये देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, इसलिए महिला इन्हें छुपाने के लिए ब्लीच से लेकर फेशियल वैक्स तक ये सारी ही चीजें जो है वो कोशिश करते रहते हैं। और यहाँ पर फेशियल हेयर के कारण चेहरे पर मेकअप भी अच्छे से ब्लेंड नहीं होता। चेहरे पर मौजूद अनचाहे बालों को हटाने के लिए क्या आप भी रेजर का इस्तेमाल कर सकती है? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अक्सर महिलाओं की ये शिकायत होती है कि रेजर के उपयोग से चेहरे पर जल्दी और ज्यादा बाल आते हैं। फेशियल हेयर रिमूवल करने के लिए आप नेचुरल तरीके जो है वो आजमा सकते हैं। दोस्तों क्या फिटकरी से चेहरे के बाल हटाए जा सकते हैं? आपने भी देखा होगा कि शेविंग के बाद त्वचा पर फिटकरी का इस्तेमाल किया जाता है। फेशियल हेयर रिमूवल करने के लिए आप फिटकरी का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, फिटकरी का पाउडर बना लेना है। आप चाहे तो बाजार से फिटकरी पाउडर भी खरीद सकते हैं सीधे ही। 1 चम्मच फिटकरी पाउडर में थोड़ा सा गुलाब जल और आधा नींबू का रस आपको निचोड़ लेना है। अब दोनों ही चीजों को आप मिक्स करें। आप इस पेस्ट का इस्तेमाल चेहरे के अनचाहे बालों को हटाने के लिए कर सकती है। फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए सबसे पहले चेहरे को फेस वॉश से आपको साफ कर लेना है। अब ब्रश की मदद से आप पेस्ट को पूरे चेहरे पर लगाएं। जब पेस्ट सूख जाए तब पानी से त्वचा को साफ कर लें। फेशियल हेयर रिमूवल के लिए इस पेस्ट को उपयोग हफ्ते में आपको 2 बार करना है। इससे आपको फायदा होगा। आपको अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो चेहरे पर फिटकरी और नींबू के रस का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। फिटकरी के उपयोग के कारण त्वचा पर खुजली, रेडनेस और जलन की समस्या भी हो सकती है। अब आपको बताते हैं कि ओट्स से आप चेहरे के बाल जो है वो कैसे हटा सकते हैं। दोस्तों इन्हें रिमूव करने के लिए आपको रेजर की जरूरत नहीं है, आप ओट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओट्स ब्रेकफास्ट के लिए एक अच्छा और हेल्दी ऑप्शन है। इसके अलावा ये चेहरे के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है। ओट्स के उपयोग जो स्किन एक्सफोलिएट हो जाती है और साथ ही ये ऑयली स्किन के लिए भी लाभदायी है। दोस्तों आप ओट्स से फेस पैक बना सकते हैं। आपको कैसे बनाना है ये फेस पैक? सबसे पहले पैक बनाने के लिए ओट्स को मिक्सी में पीस ले ताकि ये पाउडर फॉर्म में बदल जाए। अब बाउल में 2 चम्मच ओटमील पाउडर और 1 चम्मच पका हुआ केला जो है वो आपको डालना है। केला जो है जो पाउडर के साथ अच्छे से मैश कर ले। अब इस पैक को चेहरे पर लगाए और सर्कुलर मोशन में त्वचा को मसाज करनी है आपको। अब पैक को पूरी तरह से सूखने दे। कुछ देर बाद पानी से त्वचा को आप साफ कर लें। हफ्ते में 2 बार इस घरेलू नुस्खे को आप आजमा सकते हैं और आपको कुछ ही समय में फर्क दिखने लगेगा। दोस्तों इसके बाद एक और आपको नुस्खा बताते हैं। तो आप जो फेशियल हेयर, इससे अगर आप परेशान हैं, इन्हें हटाने के लिए जिलेटिन पाउडर और दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों ही चीजों से मास्क बन सकते हैं। दोस्तों आपको कैसे बनाना है ये मास्क? एक बाउल में 2 चम्मच जिलेटिन पाउडर में दूध और नींबू का रस मिलाएं। अब बाउल को 10 से 15 मिनट या 15 से 20 मिनट तक माइक्रोवेव में आपको रखना है। आपका फेशियल हेयर रिमूवल मास्क जो है वो यहाँ पर तैयार हो चुका है। मास्क का उपयोग करने से पहले चेहरे को साफ कर लेना है। जब मास्क सूख जाए तब इसे हटा ले। फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए आपको क्या करना है? अगला जो नुस्खा है वो आपको बताने वाले दोस्तों। खुबानी एक फल है। इसका इस्तेमाल कई तरह से ब्यूटी प्रोडक्ट्स में किया जाता है। खुबानी की मदद से आप चेहरे पर मौजूद बालों को हटा सकते हैं।
इसके लिए आपको एप्रिकॉट पाउडर जो है वो चाहिए होगा। 2 से 3 चम्मच खुबानी का पाउडर आपको लेना है। अब इस पाउडर में शहद मिला ले। आपका जो हेयर रिमूवल का पेस्ट जो है वो तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है कि इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं। जब पेस्ट सूख जाए तब इसे पील ऑफ कर ले और इस पेस्ट के उपयोग से फेशियल हेयर रिमूव जो है वो आपके हो जाएंगे। फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए रेजर के उपयोग से आपको बचना है दोस्तों। इसके अलावा फेशियल वैक्स करवाए। आप चेहरे के बालों को छुपाने के लिए ब्लीच भी करवा सकते हैं। बट दोस्तों सभी के चेहरे पर छोटे रोए जैसे जो बाल होते हैं, छोटे बाल होते हैं, लेकिन बहुत सी महिलाएं ऐसी होती है जिनके चेहरे पर काफी ज्यादा बाल नजर आते हैं जो उन्हें खुद को अच्छे नहीं लगते। और ऐसे में सभी महिलाएं घरेलू नुस्खे जो है वो ये इस्तेमाल कर सकती है, उसकी तलाश में रहती है। तो ये नुस्खे तो आप ट्राई कर ही सकते हैं। इसके अलावा कुछ और ऐसी चीजें हैं जिससे आपके जो बाल है फेशियल हेयर रिमूव करने में आपको मदद मिल सकती है। अब इसमें क्या है कि अंडे की सफेदी और कॉर्न स्टार्च से आप यहां पर बाल जो है फेशियल हेयर रिमूव कर सकते हैं। किस तरीके से? इस नुस्खे के लिए आपको एक कटोरी में आधा चम्मच कॉर्न स्टार्च और एक अंडे की सफेद हिस्सा जो एग व्हाइट होता है इसको लेकर के मिलाना है। इसमें 1 चम्मच चीनी भी आप डाल दें। इस मिश्रण को चेहरे की परत जो है यहां पर लगाए और फिर इसे सूखने दें। सूख जाने के बाद एक तरफ से छुड़ाते हुए बालों की उल्टी दिशा में इस मास्क को खींचते हुए इसको हटा दे और जो अनचाहे बाल जो है वो निकल आएंगे। दोस्तों इसके बाद है शहद और चीनी। चीनी और शहद को मिलाकर आप घर पर ही वैक्स तैयार कर सकते हैं। इससे तुरंत ही चेहरे के बाल हट जाते हैं। सबसे पहले एक कटोरी ले और उसमें 2 चम्मच चीनी, 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच पानी मिला ले। इसे 30 सेकंड गर्म करने के बाद निकाल ले। इसे चेहरे के अनचाहे जो बाल है इस पर लगाए और इसके बाद कॉटन के स्ट्रिप रखें। इसके बाद अगला नुस्खा जो है वो है पपीता और हल्दी। दोस्तों पपीता में पापेन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है जो कि फेशियल हेयर को हटाने में बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है। पपीते के इस्तेमाल से त्वचा निखारने में भी मदद मिलती है। इस चलते पपीते और हल्दी को मिला करके चेहरे के छोटे छोटे अनचाहे बालों को हटाने में काफी मदद मिलती है। इस नुस्खे को आजमाने के लिए आपको 1 कटोरी में पपीते का टुकड़ा और आधा चम्मच आपको हल्दी मिलानी होगी। आपको इसका पेस्ट बनाना है और इसे चेहरे पर लगाकर 15 से 20 मिनट आप इसको ऐसे ही सूखने दे सकते हैं। इसके बाद इस पैक को हल्के हाथ से रगड़ते हुए आप छुड़ा ले और ठंडे पानी से आप अपना फेस जो है वो वॉश कर सकते हैं। लीजिए, इस तरीके से आप ये तरीका जो है वो नेचुरली घर पर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आपके क्या विचार है फेशियल हेयर ट्रीटमेंट की जो रेमेडीज हमने बताई जिसको आप घर पे ही इस्तेमाल कर सकते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों जिसको भी जरूरत हो इसके बारे में उनके साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में पूरी जानकारी मिले। और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। और दोस्तों अगर आप हेल्थ से रिलेटेड और भी रेगुलर कंटेंट अपने सोशल मीडिया पर भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज जो यूजर आईडी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है उसको इंस्टाग्राम पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ जिससे आपकी हेल्थ और फिटनेस बनी रहे। और अब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।